Welcome students. Now we are going to study about इलेक्ट्रिक डाइपोल. आगे वाले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो स्टडी किया. अब हम एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ डाई मीन्स टू, poles. Here we have to discuss a charge system in which two opposite poles are produced. Poles मतलब यहाँ पर चार्ज की अगर हम बात करें तो we have to take two opposite and equal charges. Suppose we have system in which we have one positive charge and we have one negative charge. They have equal magnitude and they are placed at some finite distance. Suppose distance between these two charges is considered 2a. From center, one side A, another side A, so total distance we take 2a. Then this system is called electric dipole. So now what is definition of electric dipole? It is the system of two equal and opposite charges which are placed at some finite distance. Now what is need of defining electric dipole? So we'll take some practical examples. जैसे हम HCl मॉलिक्यूल की बात करते हैं. HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और वो इलेक्ट्रॉन Cl अपनी साइड पर पुल करता है जिससे Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है एंड हाइड्रोजन इज गेटिंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. सो HCl मॉलिक्यूल इज नॉट non-polar molecule, it is polar molecule. It has some charge difference between two participating atoms. So this is called one dipole. और अकेला HCl ही नहीं, ऐसे बहुत सारे molecules हैं जो polar nature के हैं. For example हम water की बात करते हैं. Oxygen, it is connected with two hydrogen atoms. हाइड्रोजन अगेन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक डाइपोल क्रिएट हुई, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक और डाइपोल क्रिएट होती है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए बहुत ही यूजफुल है. अब अगर हम ये सबको सेपरेट चार्ज सिस्टम कंसीडर करके एक्सप्लेन करें उससे बेटर होता है कि हम ये दोनों चार्जेस को मिलाकर एक सिस्टम डिफाइन करें और फिर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड करें. तो इस टाइप के जितने भी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स होते हैं, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए जनरली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं. नाउ व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? HCl की इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वाटर की इलेक्ट्रिक डाइपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करेगी? तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज वन फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. So electric dipole is represented by P. It is defined as magnitude of one of the charge into distance between two charges. So magnitude, that means value of dipole moment is Q into 2a. Now dipole moment is taken as a vector quantity and direction of dipole moment is always from negative charge to positive charge, negative charge to positive charge. So if we write dipole moment direction here, this is negative charge, this one is positive charge, so we have to draw dipole moment from negative to positive charge. So this is direction of electric dipole moment. Now what is unit of dipole moment? If we write unit, and unit of dipole moment is coulomb into, for charge it is coulomb and distance it is meter. So this is called coulomb into meter. We should not write it like this, meter into coulomb, because this is considered as millicoulomb, not meter into coulomb. So better we write meter before after coulomb.
Now what is dimensional formula? So we'll find out dimensional formula of this physical quantity. For coulomb it is A1 into T1 and meter it is L1. So this is L1 A1 T1. तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है उसकी बात की। अब जैसे सिंपल चार्ज पार्टिकल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, सिमिलर वे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो फाइंड करना है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की ट्राई करेंगे एक्सियल पॉइंट पर और उसके इक्वेटोरियल प्लेन में। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक हमने चार्ज यहाँ पर प्लेस किया है, दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, उतने डिस्टेंस पर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देते हैं, दैट इज प्लस क्यू। नाउ टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2a, सो यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस a बनेगा और ये आगे का डिस्टेंस भी a कंसीडर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक्सियल पॉइंट के लिए, दिस इज अवर केस 1। अब एक्सियल पॉइंट क्या होगा, तो यहां पर हमने डाइपोल को इस पर्टिकुलर एक्सिस पर प्लेस किया है, तो ये एक्सिस को उसकी एक्सियल लाइन बोलेंगे और वो एक्सियल लाइन पर, फॉर एग्जांपल हम इसको एक्स एक्सिस सपोज कंसीडर कर दें, तो हमें वो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। अब डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन में होती है, मतलब ये डायरेक्शन जो बनेगी वो पी वेक्टर की डायरेक्शन है। मान लो कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये कोई ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है और ए पॉइंट का ओरिजिन से, दैट मीन सेंटर ऑफ डाइपोल से जो डिस्टेंस बनता है वो फॉर एग्जांपल हम आर कंसीडर कर लेते हैं। अब डाइपोल अल्टीमेटली दो चार्जेस से बनी हुई है, इसलिए हमें ये दोनों चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वहां पर फाइंड करना पड़ेगा और उनका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट करेगा E प्लस क्यू जितना, और अगर हम उसकी वैल्यू लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सो टोटल डिस्टेंस R माइनस डिस्टेंस A, सो दिस विल बी R माइनस A स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन बनेगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, तो सपोज वी कैन राइट कैरेट I। सिमिलर वे अगर हम नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये वाली डायरेक्शन में, जो E माइनस क्यू बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन टू E प्लस क्यू। मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू कम बनेगी क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर सेम। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू चार्ज लिखिए, सो दैट इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर फाइंड करें तो यहां से ओरिजिन तक R, यहां से आगे का डिस्टेंस A, सो दिस विल बिकम R प्लस A एंड स्क्वायर। चार्ज नेगेटिव है तो माइनस साइन और कैरेट I, तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन बनी माइनस कैरेट I, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। सो इफ यू फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय E net on axial point, so it should be E1 plus E2, so E produced by positive Q charge plus electric field produced by negative Q charge, so in this case that is equal to KQ। KQ दोनों में है उसको हम कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर
1/r minus a square minus sign is of this negative charge divided by r plus a whole square, and direction will be caret I. Now see here, p vector is also in the direction of positive x-axis, so we can write caret p is equal to caret I. So now electric field on axial point is equal to kq in bracket, this will be r square minus a square और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन r स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर कैरेट p। तो अगर हम ऊपर के पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सो ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट 2ar टोटल 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर इन डायरेक्शन p। Now see, q into 2a is called dipole moment. So now q into 2a is equal to p. So here we have 2a and q. So that we can take as a p. So 2kp into r. So now electric field on axial point will be equal to 2kp r upon r square minus a square whole square caret p. This is electric field produced by electric dipole on axial point. Now, if we take this point far away so that this distance is small compared to distance r, then if r is very large compared to a, in this case here we can remove this a, so that will become r raised to 4. So in this case E axial will be equal to 2kp upon r cube caret p. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन मिलता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट लाइक चार्ज के लिए हमें जो वैल्यू मिली थी दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब कि डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत ही फास्ट डिक्रीज होता है। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली 1/8 टाइम हो जाएगी। सेकंड वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ऑल्सो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज डाइपोल मोमेंट। And third important point, direction of electric field is in the direction of electric dipole moment. So this was about electric field produced on axial line. Similar way, now we will try to find out electric field due to dipole on equatorial plane. What is equatorial plane? तो ये हमने डाइपोल कंसीडर किए, सपोज हमने उसको एक्स एक्सिस पर रखा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक प्लेन कंसीडर करें जो डाइपोल के सेंटर में से पास हो रहा है और उसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो ऐसे प्लेन को बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो इस पर्टिकुलर केस में वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये दोनों को कनेक्ट करने वाला जो प्लेन बनेगा वो उसका इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा। तो इक्वेटोरियल प्लेन में कोई भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो कितना बनेगा अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं बी पॉइंट, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे बी पॉइंट पर जो इक्वेटोरियल प्लेन में है। पहले जैसे किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज का यहाँ तक का डिस्टेंस जो बनता है
वो ये वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस ये वाले पार्ट का स्क्वायर बनेगा। ये डिस्टेंस को आगे जैसे हमने r कंसीडर किया था वैसे हम r कंसीडर कर लेते हैं। ये a है, सो दिस विल बिकम रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। Now, what will be direction of electric field produced by positive charge here? So, positive charge will produce electric field in outward direction. This is E produced by positive charge. If we consider this angle as suppose theta, then this angle will become theta. And here, electric field can be divided into two segments. This E Q sin theta part, and here it will be E positive Q cos theta part. Similar way, if we draw electric field due to negative charge, then here this distance will again become root of r square plus a square, and electric field due to negative charge is inward, so here electric field will be in this direction, that is E minus Q charge. अब ये एंगल B थीटा बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये साइड का कंपोनेंट जो आएगा दैट इज अगेन E माइनस Q cos थीटा, और इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट जो आएगा वो E माइनस Q साइन थीटा आएगा। अब अगर E Q का मैग्नीट्यूड पहले निकाले तो E पॉजिटिव Q मैग्नीट्यूड और E नेगेटिव Q मैग्नीट्यूड बोथ विल रिमेन सेम। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कंसीडर करो या यहां तक का डिस्टेंस कंसीडर करो, डिस्टेंस भी सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करने की ट्राई करें तो साइन कंपोनेंट और नेगेटिव चार्ज का साइन कंपोनेंट एक दूसरे से ऑपोजिट है, सो दे विल कैंसल ईच अदर। दोनों के कॉस कंपोनेंट ये साइड पर जा रहे हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन जो बन रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बन रही है। इसका मतलब कि हमारी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी उससे ये डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल रीजन दैट इज इक्वल टू ई क्यू, that means k q upon root of r square plus a square। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, प्लस k q अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को हमने प्लेस कर दी, और ये दोनों के कॉस कंपोनेंट हम कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें p कैरेट से ऑपोजिट मिली, इसलिए डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस कैरेट पी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 2kq अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कैरेट पी। नाउ हियर इन ट्राइंगल cos theta is, this is angle theta, similarly this is also angle theta, so cos theta is adjacent side upon hypotenuse, so that will be equal to a divided by root of r square plus a square. So if we put this value over here, then electric field on equatorial plane is equal to minus 2kq into a upon, this is root, here it is in form of square, this will be square, so here we need not to write this root, everywhere we have to remove the root. Okay, so this will be r square plus a square raised to 3/2, and its direction is caret
P. So finally this is our electric field due to electric dipole on equatorial plane. Here also if we take, if R is very large compared to A, तो अगर हम ये R को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक काम करते हैं, पहले हम इसमें P के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, एक स्टेप पहले ले लेते। हियर P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, सो 2QA, ये तीनों को निकाल के हम उसकी जगह पर प्लेस कर देते हैं P को, तो E इक्विटोरियल इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू 3/2 into caret P. So basically we should remember formula in this form, in form of P. Now if R is very large compared to A, we can remove this point, so E equatorial will become minus KP upon R cube caret P. Now see, if we compare electric field on axial point and equatorial point, then first by magnitude, एक्सियल पॉइंट के फॉर्मूला में 2kp अपॉन आर क्यूब आता था, इक्वेटोरियल के फॉर्मूला में kp अपॉन आर क्यूब आता है। इसका मतलब कि यहां से r जितनी डिस्टेंस पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला है उससे हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से r डिस्टेंस पर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वो इक्वेशन में 2 था, ये इक्वेशन में 2 नहीं है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एट गिवन डिस्टेंस is twice the value of electric field on equatorial line. Second major difference, एक्सियल का फॉर्मूला जो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैरेट P की थी, while in equatorial it is negative of कैरेट P. So यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है, दोनों के बीच में एंगल बन गया 180 डिग्री. So this is इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन. अब क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर हमें एक्सियल या इक्वेटोरियल की जगह पर और कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डाइपोल से, तो कितना बनेगा. सपोज ऐसे हमने डाइपोल कंसीडर किया था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जितना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस वन इज सेंटर. ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन था, ये एक्सियल लाइन थी, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल प्लेन. अब सपोज हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कोई P पॉइंट पर. P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनता है ये वाला, दिस इज R वेक्टर. P पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज वो ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, हमने पॉइंट P जो लिया है वो एक्सियल पॉइंट से सपोज थीटा जितना एंगल बना रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू KP अपॉन R क्यूब इंटू √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. हम ये फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां पर थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन बनती है उससे जिस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है उसके पोजीशन वेक्टर ने जो एंगल फॉर्म किया वो वाला एंगल बनेगा. अब सोचो अगर हम एक्सियल का कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर एक्सियल दिस एंगल थीटा विल बिकम 0 डिग्री. अगर हम यहां पर 0 कंसीडर कर लेते हैं, cos 0 इज 1, सो 3 + 1 इज 4. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट विल बिकम 2kp upon r cube, which was our formula. Similar way for equatorial, theta is equal to 90 degree. So if we place 90 degree here, this will be 0. So electric field magnitude on equatorial will become kp upon r cube. So this is general formula of electric field at any point. This will give you magnitude of electric field. Now what is about direction of electric field?
Suppose this electric field makes angle alpha with position vector. Then in that case, tan alpha is equal to 1/2 times the tan theta. So with help of this equation, we can find out direction of electric field produced by dipole at any point P, which is not on equator or an axial point.